This is a great news for Kosovo people, and now they can travel visa free for short trips for tourism purposes to the Schengen zone, Europe's massive borderless area. And this makes Kosovo more integrated with the Europe, and with the help in they opens door for tourism and closer ties with Europe. And for some key facts and mapping are also important for your syllabus. Let's learn about that. So hello everyone, welcome to the Apti Plus Academy of Civil Services, a premier organization for preparation of civil services exam. In today's News in Focus video session, we will discuss about Kosovo and visa-free access to the Schengen zone in detail. This is an important topic for various civil services exams. Especially it is relevant for prelims examination, which includes current event of national and international importance, mapping of the places, right? So we will discuss about this topic in the mapping in detail. So let's jump to the context. So recently, the Kosovo country has obtained a visa-free access to the Schengen zone. टूरिस्ट विजिट अलाउ कर दी गई है. ये सेंजन जोन है क्या, डिटेल्स में आप बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जोन ऑफ फ्री मूवमेंट, बॉर्डरलेस जोन है. एंड ये जो शेंगन जोन का नाम रखा गया था, इट इज ऑन द टैनी लग्जमबर्ग विलेज नेम्ड शेंगन. तो उस टैनी लग्जमबर्ग विलेज के नाम पे इसका नाम रखा गया शेंगन जोन, जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था. जो शेंगन विलेज बॉर्डर्स फ्रांस एंड जर्मनी, यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ था 1985 में. यानी इनिशियली जो 6 यूरोपियन यूनियन के फाउंडर मेंबर थे, उनमें से 5 एक्सक्लूडिंग इटली, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, राइट. इसमें यह भी कहा गया था इससे पहले क्रोएशिया को 2000, जो कि यूरोपियन यूनियन का 2013 से मेंबर था, द क्रोएशिया ज्वाइंड शेंगन एरिया इन 2023. अगर इसमें एक ये भी बात कही गई है कि द रोमानिया एंड बल्गेरिया, जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं फ्रॉम 2007, दे विल गेन पार्शियल शेंगन एंट्री इन द मार्च, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर न्यूज कि अभी तक लेट्स व्हाई दिस कंट्री कोसोवो application was kept pending, why it was not given access until now. So the case of Kosovo is different. देखो, in 2018 यूरोपियन कमीशन ने इसकी पेटिशन रिव्यू की थी, एंड द यूरोपियन कमीशन फाउंड दैट द कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस टू टैकल इलीगल माइग्रेशन एंड करप्शन एंड द प्री कंडीशन फॉर द एंट्री इज ओके, द कंट्री फुलफिल्स एवरीथिंग. लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वाज द अपोजिशन फ्रॉम द other EU members, European Union members. Many European members do not recognize Kosovo as country. देखिए 2008 में क्या हुआ था? In 2008, look at this Kosovo country. It was broken itself from the Serbia and declared independence. But some countries do not recognize the Kosovo as an independent state. For example, UN, United Nations itself, has not been accorded the legal statehood to Kosovo. Also Russia and China, they do not recognize the country, right? So this was the biggest obstacle. So what are the benefits of the member to be a member of this zone? What are the advantages of the European Union's border free policy? पहला simple है, the benefit is freedom to travel with a single visa, single Schengen visa to other European nations. ठीक है. So this is a borderless area जहाँ पे फ्री मूवमेंट है, बिना एक वीजा वुड वर्क, राइट. सो इट्स अ वीजा फ्री बॉर्डरलेस ट्रेवल अलोंग साइड द सिंगल करेंसी. सो 20 यूरोपियन कंट्री हैज अडॉप्टेड ए सिंगल करेंसी यूरो, राइट. इट इज अ काइंड ऑफ विजिबल सिंबल ऑफ यूरोपियन यूनिटी, यूरोपियन इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरीज, राइट. एंड ऑल्सो द शेंगन्स इंटीग्रिटी क्रूशियल फॉर द पोस्ट वार सक्सेस ऑफ यूरोपियन प्रोजेक्ट. So let's learn if admission to the Schengen mandatory for a European Union member or not. So there is no certain answer to that. It is both yes and no. देखो 1985 में एग्रीमेंट हुआ था शेंगन विलेज में, एंड दिस एग्रीमेंट टुक इफेक्ट इन 1995. एट दैट टाइम 15 मेंबर्स वर देयर इन 1995. यूरोपियन यूनियन में 15 मेंबर्स थे. सो आउट ऑफ दिस दोज 15 मेंबर्स ओनली 7 joined the passport free area, and today there are around 27 members in the European Union. बट ओनली 23 मेंबर्स आर पार्ट ऑफ शेंगन एरिया. जो 4 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं? साइप्रस, रोमानिया, बल्गारिया एंड आयरलैंड. आगे हम देखेंगे, एक मैप के थ्रू देखेंगे कि वो कंट्रीज कहाँ कहाँ पे, यानी कि साइप्रस कहाँ है, रोमानिया कहाँ है, बल्गारिया कहाँ है एंड आयरलैंड कहाँ है, विच आर नॉट पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया.
4 कंट्रीज पार्ट नहीं है जो कि यूरोपियन यूनियन के हैं, बट देयर आर 4 अदर कंट्रीज विच आर नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन बट दे आर पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? लिechtenstein है, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है एंड नॉर्वे। सो दीज आर द 4 कंट्रीज। So again, before moving ahead with the mapping, this is an important announcement, and FT Plus Academy is organizing a free mock test on 25th February 11 a.m. to 1 p.m. Right? So thousands of candidates would be appearing in the test, and this is a golden opportunity for you to compare and compete yourself with the thousands of candidates, the similar candidates just before the prelims. So it will provide an opportunity to analyze your weak and strong areas. Right, but you need to register for that, and for registration either you can scan the QR code mentioned here on the screen, or you can visit the link, click on the link which is given in the description. अवार्ड्स के भी प्रोविजन है, टॉप 10 रैंकर्स को अवार्ड दिए जाएंगे, पहले टॉप 3 को सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा 49 मॉक टेस्ट्स का, एंड जो बाद के 7 रैंकर्स हैं 4th से लेकर 10th तक, दे विल बी प्रोवाइडेड द फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर 10 मॉक टेस्ट्स। राइट, along with that there is a Nishchay test series program, all India test series program of FT Plus, right, especially important for those aspirants who are appearing for prelims 2024. So it came up with a Nishchay test series, and this is a comprehensive test series with 49 high quality questions. They are designed by the subject matter experts, and various benefits along with the high quality questions. You would get 10 recorded discussion classes, and if you are not satisfied with all of this, your money will be returned. Right, again you can scan this code for registration, or go to the FT Plus Academy's official website for the more information. See, this test series will provide you the realistic exam simulation. You will be able to understand your strength and weakness area to boost your scores. The time bound practice would be helpful in managing your time effectively, right? So it is your shortcut to prelim confusions. So take a step further towards your IAS dreams if you enroll for this test series. Now let's understand about the Kosovo country. जैसे हमने बात की थी सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं बल्कान रीजन। बल्कान रीजन जो माउंटेनियस रीजन है, स्पेशली यूरोप के साउथ ईस्ट में कौन कौन से नेशन है, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री है बल्कन की, सर्बिया। ये देखिए, लेट्स लुक एट द मैप। सो दीज आर द बल्कन नेशंस। इफ यू लुक एट द कोसोवो, कोसोवो के देखिए इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सर्बिया, क्योंकि सर्बिया से ही अलग हुआ था, तो सर्बिया इसके नॉर्थ एंड ईस्ट में है। नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया कहाँ है, साउथ ईस्ट में है, ये देखिए थोड़ा सा साउथ ईस्ट में। अल्बेनिया साउथ वेस्ट में। मॉन्टीनेग्रो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में देखिए मॉन्टीनेग्रो, राइट। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जो बल्कन कंट्री मानी जाती है, जैसे सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बल्गारिया, ठीक है। तो ये आप कंट्रीज को देखें, दीज आर द बल्कन कंट्रीज। सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड के लीगल स्टेटहुड नहीं है यूएन के अकॉर्डिंग, ना ही इसको रिकॉग्नाइज करते हैं रसिया एंड चाइना, राइट। तो इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। लैंडस्केप इसका मोस्टली माउंटेनियस है। हाईएस्ट पॉइंट है जेराविका, द हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ दिस हाईएस्ट पॉइंट इज अराउंड 2656 मीटर। क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल है, लैंड एंड सी ब्रीज इफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। इकोनॉमी नॉट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद नहीं रखना है, इकोनॉमी क्रॉप्स, मिनरल एंड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं, बट एक होलिस्टिक कवरेज के लिए वी हैव इंक्लूडेड दिस। सो इकोनॉमी रिलाइज मेनली ऑन एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्रॉप्स में देखा जाए तो वीट, कॉर्न, जिसको मेज भी कहते हैं, वीट, कॉर्न, पोटैटोज एंड फ्रूट्स। मिनरल्स में कोल, लीड, जिंक, निकल, एंड इट मैन्युफैक्चर्स मोस्टली टेक्सटाइल्स। It is the food producer and the furniture manufacturer, right? So let's learn about the Schengen zone, Schengen area. So as we already discussed all of the details, but एक briefly हम recap कर लेते हैं। 1985 में लग्जमबर्ग विलेज है नाम जिसका शेंगन था, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था, 1995 में इफेक्ट में आया था। लार्जेस्ट वीज़ा फ्री ट्रेवल जोन है, एंड सो इट अबॉलिशेस द इंटरनल बॉर्डर चेक्स। यहाँ पे वीज़ा फ्री मूवमेंट होता है एक वीज़ा के थ्रू। सिंगल ज्यूरिसडिक्शन है फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल। 23 आउट ऑफ 27 EU मेंबर्स हैं, दे पार्टिसिपेट इन दिस। नॉन EU मेंबर्स में कौन कौन से हैं ये भी हमने बात कर ली थी। क्रोएशिया ने 2023 में ज्वाइन किया था, अभी कोसोवो ने ज्वाइन किया है, एंड रोमानिया एंड बल्गारिया वुड हैव पार्शियल एंट्री इनटू दिस जोन इन मार्च, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल मैप ऑफ द शेंगन एरिया, जहाँ पे पर्पल में और आपको ब्लू में दिख रहे हैं, दीज आर द कंट्रीज ऑफ शेंगन एरिया। स्पेशली इफ यू लुक एट द ब्लू वंस, दीज वंस, दिस टाइप ऑफ ब्लू, दीज आर द शेंगन
area countries belong to the Schengen area and also they are a part of the European Union. The countries which are purple, see there, the Iceland, Norway, Switzerland, right? इसके बगल में छोटा सा एक है लिechtenstein. ये these are the countries not belonging to the European Union but they are member of Schengen area. So जो ग्रीन में कंट्रीज हैं आपको दिख रही हैं, यहाँ पे देखो आयरलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, यहाँ पे देखो लास्ट में देखें आप एकदम बॉटम कॉर्नर में साइप्रस. दीज आर द 4 कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया, राइट. तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैपिंग. जो हाईलाइटेड रीजन है दैट इज लग्जमबर्ग. देखो लग्जमबर्ग में अगर आप ये वाला देखें, दिस इज योर इंग्लैंड, यहाँ पे ये फ्रांस है और इसके अगर आप लग्जमबर्ग के राइट में देखते हैं ये वाला दिस इज जर्मनी. ये छोटा सा एरिया है दैट इज योर लग्जमबर्ग, ठीक है. यहाँ के अगर वैसे देखें तो ऊपर वाला ये बेल्जियम है और ये वाला नीदरलैंड है, राइट. तो इसमें शेंगन विलेज कौन सा है, सी हियर. इस वाले पार्ट को अगर हम जूम इन करते हैं तो जो ऑरेंज में जो पार्ट है, दिस एरिया इन ऑरेंज इज द विलेज, शेंगन विलेज ऑफ द लग्जमबर्ग कंट्री, ठीक है. इसी के बेसिस पे इसी ऑन दिस विलेज नेम द एरिया इज नोन एज शेंगन एरिया, ठीक है. अब यूरोपियन यूनियन वी ऑलरेडी नो, इस पता है लेकिन एक जल्दी ब्रीफ ले लेते हैं. पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स. एस्टेब्लिश कहाँ से हुई थी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो 1993 में हुई थी उससे एस्टेब्लिश हुई थी. एंड ट्रीटी ऑफ लिस्बन इन 2009 लेड टू इट्स इनकॉर्पोरेशन एज एन इंटरनेशनल लीगल जुरिडिकल पर्सन, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द कोसोवो का मैंने फिर से मैप दे दिया है अगर आपको थोड़ा पॉज करके देखना चाहें तो, बल्कन कंट्रीज को, बॉर्डरिंग कंट्रीज को, राइट. ओके, सो लेट्स मूव टू द फंक्शनिंग. सो ये ओपन बॉर्डर्स के बारे में बात कर रही थी हमने. कोई रूटीन चेक नहीं है फॉर पासपोर्ट होल्डर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज. इफ समबडी द क्रिमिनल इज एस्केपिंग और इफ देयर एनी इशू, द मेंबर स्टेट की पुलिस है वो कोऑपरेट करती है. इट फैसिलिटेट्स द क्लोज पुलिस कोऑपरेशन अक्रॉस द मेंबर स्टेट. वो वाली क्रॉस बॉर्डर परसुएट हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो. इट ऑल्सो इंक्लूड द जॉइंट ऑपरेशंस. एक कॉमन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट. जो एंट्री बैन किस इंडिविजुअल्स के लिए है तो सेंट्रलाइज, जिससे कि कोई कंफ्यूजन हो, एक सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम है, डेटाबेस है. अलॉन्ग विद दैट देयर इज शेंजन इवैल्यूएशन मैकेनिज्म. So this mechanism ensures the compliance with the rules of this area by all the members. जो regular assessment and monitoring, peer reviews होते रहते हैं, तो एक proper evaluation mechanism है, right? External border की अगर हम बात करें तो common visa policy है, integrated border systems है, जहाँ पर various technologies, information source हैं, they enhance the border security and control. For example, biometric checks हैं, electronic travel authorization systems हैं, right? और फ्रंटेक्स एक ईयू एजेंसी है जो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है बॉर्डर मैनेजमेंट एक्टिविटी में को कोऑर्डिनेट करने में. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द टेक्निकल असिस्टेंस, ऑपरेशनल सपोर्ट टू द मेंबर स्टेट्स. इसके अलावा कुछ अच्छा, डबलिंग रेगुलेशन जब भी आए तो इट इज रिलेटेड टू द डिसीजन ऑन द असाइलम एप्लीकेशन फॉर दिस इन यूरोप, राइट. इट डिटरमाइंस विच कंट्री इन यूरोप और डबलिन कंट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग योर असाइलम एप्लीकेशंस. तो कंसर्न्स क्या है इस एरिया से रिलेटेड, देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो चैलेंजेस भी हैं. सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, माइग्रेशन चैलेंजेस हैं लाइक इरेगुलर माइग्रेशन, अनचेक्ड माइग्रेशंस. देयर माइट बी सम डिस्क्रिपेंसीज इन द बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. डिबेट्स चलती रहती हैं, इस तरह की इश्यूज ऑनगोइंग रहती हैं. तो द नीड ऑफ द आयर इज टू बैलेंस द फ्री मूवमेंट अलॉन्ग विद द checking the concerns of migration, strengthening the border controls, ensuring the fair burden sharing of migration. ठीक है, इस तरह की एक बैलेंस की जरूरत है. सो नाउ लेट्स लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, ये आया था 2023 में. कुछ कंट्रीज दी हुई थी लाइक बल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया. एंड द क्वेश्चन यूक्रेन बहुत न्यूज में था. हाउ मेनी ऑफ द अबोव मेंशन कंट्रीज शेयर ए लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन. यहाँ पे क्लियर ऐसे नहीं है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ. यहाँ पे ऑप्शंस हैं ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5. तो यू हैव टू नो एग्जैक्टली विच कंट्रीज, राइट. इसका वैसे आंसर है ओनली 2 कंट्रीज. अब 2 कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये आपको पता करना है. आपके रेफरेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए आई हैव गिवन दिस मैप. सो यूक्रेन के जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो ये सारे हैं. So as per the given option in the question, you have to identify which 2 countries are there which are bordering with the Ukraine.
right? You can easily do that. So this is all for today. Thank you for joining today's news and focus session of FT Plus Academy, and I hope the discussions we made here, they would be valuable for your upcoming prelims exams. For till the next time, stay tuned for more educational information which may be useful for exams, which will be useful for your exams. Keep learning, keep visiting FT Plus YouTube channel, and thanks for watching. Signing off.